A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. In the last meeting, we were talking about Barbaric, that he was one of the few to listen Bhagavad Gita. Let us know something more about Barbaric. Barbaric, the son of Ghatotkach, was the only warrior in the legend of Mahabharata who was invincible enough to be abetted by Lord Krishna himself to commit suicide so that he can be prevented from engaging in the war. But why so? Barbaric was a symbol of equality, who was bound by his principle to always fight for the weaker side. Had he participated in the war, he would have fought from Kaurava's side. But then the winning of Pandavas would not have been possible. Krishna explained to Barbaric that before a battle, the head of the bravest Kshatriya needs to be sacrificed in order to worship and sanctify the battlefield. Krishna said that he considered Barbaric to be the bravest among Kshatriyas and was hence asking for his head in charity, to which Barbaric agreed. But before sacrificing himself, Barbaric told Krishna of his great desire to view the forthcoming battle and requested him to facilitate the same. Krishna agreed and bestowed him a boon of being alive till the end of the war, enabling him to witness the entire war and placed his head on top of a hill from where he was overlooking the battlefield. From the hill, the head of Barbaric watched the entire battle, including listening the Gita. It is said that the head of Barbaric was offered to river Rupavati by Lord Krishna himself. The head was later found buried at Khatu village in Sikar district of Rajasthan. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Sir, please unmute kar lijiye. Very good. Shantaakaram Bhujagashanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagan Satrisham Meghvardhan Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalananam Yogi Virdhyana Gamyam Vande Vishnu Bhavabhayaram Sarvalokaikanatham Yam Brahma Varudendra Rudra Bharuta Ashtunvanti Divyaistavi Devi Shangapadakramopanishadai Gayantyam Samaga Dhyanavastit Tadgate Namanta Pashyantyam Yogina Na Vidusur Asurgana Devaya Tashmai Nama Pravishi Nagar Ki Jai Sabakaja Hridaya Rakhi Koshal Purraja Garal Sudhari Pukare Mitai Gopad Sindhu Anal Shitalai Garun Sumeri Ren Samtai Ram Kripa Kar Chitva Jai Jai Shri Ram Jai Jai Shri Ram. तो पिछले अध्याय में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। 24 तत्वों का क्षेत्र है, मेटीरियल एनर्जी ऑफ गॉड, और स्पिरिचुअल एनर्जी क्षेत्रज्ञ है जो उसको जानता है, और इन सबको जानने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर है। जानने योग्य कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर। जाना कैसा जाएगा? ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनियम, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, भगमचारम, निवृत्त, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुष्दोष दर्शनम, आसक्ति अनभिसंगम, पुत्र धारा गृहाद से चित्तम तहंसित इष्ट अनिष्ट पस्ते मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारी विभक्त देश सेवितम अरतीय जनसंति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम। ये ज्ञान है जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है। ब्रह्म क्या है? मत्परा ब्रह्म
न सत न असत उच्यते। परम ब्रह्म न सत है न असत है, न कुछ है न कुछ नहीं है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। सर्वतो पाणिपादम सर्वतो अक्षमुखोचम सर्वतो मूल्यलोके, सब जगह पैर है, हाथ है, सब कुछ है, सबके बाहर है, सबके अंदर है। हाँ, डिवाइडेड दिखता है लेकिन है नहीं, सारा ब्रह्मांड उसी की बॉडी है। जब इसको जान लेते हैं तो क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं इस ज्ञान के द्वारा। अब इसमें जो वर्णन हुआ है वो मोटे तौर पर हुआ है, और इस पूरे अध्याय में पूरे 33 श्लोक को ध्यान पूर्वक अर्जुन ने सुना है, कोई प्रश्न नहीं किया है। क्यों? एकाग्र चित्र होकर के इसको पकड़ने की कोशिश किया है। तो जब वक्ता ये देखे कि श्रोता एकदम एकाग्र चित्र है तो उसको और गूढ़ ज्ञान देना चाहिए, रिसीविंग मोड में हो जाए तो ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और गूढ़ ज्ञान है। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान है। अब तक बहुत सारे ज्ञान कहे गए 13 चैप्टर तक, तो भगवान क्या कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। अब मैं परम उत्तम ज्ञान को बताऊंगा तुमको। ज्ञान तो बता चुके हैं, ज्ञानों का ज्ञान उत्तम ज्ञान होता है, ज्ञान का भी ज्ञान। यज ज्ञात्वा मुनः सर्वे परम सिद्धि आगता, जिस ज्ञान को जान करके सारे मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। सिद्धि को नहीं, परम सिद्धि। सिद्धि होती है अड़िमा गड़िमा 8 प्रकार की, वो फंसा लेती हैं, गिर जाता है आदमी उनको प्राप्त करके। परम सिद्धि वो है जो सिद्धि को कंट्रोल करता है। तो इस परम ज्ञान को जान करके परम सिद्धि को मुनियों ने प्राप्त किया। इति ज्ञानम उपासित ममसा धर्मम आगता, इस परम ज्ञान की उपासना से ममसा धर्म, जो मेरा धर्म है, उसमें आ जाओगे। मतलब जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं वो तुम्हारे में आ जाएंगे। क्या है एट्रीब्यूट्स ब्रह्म के? अज, अविनाशी, अव्यय, शाश्वत, पैदा नहीं होता, मरता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, चेंज नहीं होता, सब कुछ है, कुछ नहीं है। इस धर्म को प्राप्त हो जाओगे इस परम ज्ञान के द्वारा। सर्गे अपि न उपजायन्ते, जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो तुम पैदा नहीं होगे इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। प्रलय न व्यथन्ति ते, और सृष्टि का अंत होगा तो तुम्हारा अंत नहीं होगा। सृष्टि की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा की उत्पत्ति से। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सृष्टि उत्पत्ति होती है, जब ब्रह्मा की रात होती है सृष्टि का प्रलय होता है। तुम इन दोनों से अलग हो जाओगे। इस परम ज्ञान को जान लेने के बाद तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जैसे मेरा न मृत्यु होती है न जन्म होता है। ये परम ज्ञान है, ये गूढ़ ज्ञान है। वो वाला ज्ञान नहीं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। उस ज्ञान का ज्ञान, उस ज्ञान से ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञान ये ज्ञान है, परम ज्ञान। क्या है? वहां उन्होंने कहा कि मेरी 2 शक्तियां हैं, जड़ और चेतन, मटेरियल और स्पिरिचुअल, दोनों के संयोग से सारा ब्रह्मांड बना है। मोटा मोटी बता दिया। यहां उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं
कि ये होता कैसे है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलन कैसे होता है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होते क्या है, ये आते कहां से हैं, ये बनते किससे हैं, इनका संयोग कैसे होता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। इसलिए इस ज्ञान को परम ज्ञान कहा है। चला लो हमने मूड कर दिया सर। इसीलिए इस ज्ञान को परम ज्ञान कहा है। अब आगे इस ज्ञान की व्याख्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि क्षेत्र कहां से आता है, क्षेत्रज्ञ कहां से आता है, दोनों का मिलन कैसे होता है, ये है कहां से, इनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो भगवान कहते हैं मद योनि महद ब्रह्मा, मद योनि महद ब्रह्म, मेरी योनि है महद ब्रह्म। ये महद ब्रह्म क्या है? सेकेंड चैप्टर में जब सांख्य योग की व्याख्या हो रही थी 11 श्लोक से लेके 30 श्लोक तक, वहां भगवान ने इसका संक्षिप्त वर्णन दिया था कि पार ब्रह्म परमेश्वर परिणित किया प्रकृति और पुरुष में अपने को, और दोनों के संयोग से सृष्टि बन गई। तो ये प्रकृति क्या है? महद ब्रह्म है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में खेत में बीज डाला गया, पैदावार ली गई। यहां का क्षेत्र क्या है? प्रकृति है। प्रकृति इज एनालॉगस सिनोनिमस टू क्षेत्र। और ये प्रकृति कौन है? मद योनि। भगवान कह रहे हैं ये मेरी योनि है, ये प्रकृति। महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। मतलब सारे योनियों की योनि ये प्रकृति है। और प्रकृति कहां से आई? महद ब्रह्म। ब्रह्म ही योनि बना, और उस योनि से सारी योनियां निकली। समझने की कोशिश करिए। मद योनि महद ब्रह्म, महतत्व मेरी योनि है। महतत्व क्या है? मूल प्रकृति से महतत्व बना। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। संभव सर्वभूतानाम, जितने पदार्थ हैं, भूतानाम, जिनका वर्णन पिछले चैप्टर में हुआ था, क्या? मा भूत अहंकारो बुद्धि व्यक्त एवता इंद्रिया दशक चैव पंच इंद्रिय गोचर इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सविकारम उदाहृतम। इस क्षेत्र का वर्णन किया गया। ये सारे क्या है? पदार्थ, क्षेत्र। ये कहां से निकले? इस प्रकृति से निकले। संभव सर्वभूता नाम, ये सारे के 27 जो वर्णन किए इसी से निकले। संभव सर्वभूता नाम, ये सारे संभव हुए तो भवति भारत। मद योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। क्षेत्र इज एनालॉगस टू मूल प्रकृति। मूल प्रकृति महतत्व में परिणित हुई, उस महतत्व से सारे पदार्थ निकले। सारे पदार्थ की जननी है। संसार में जितने पदार्थ हैं, मटेरियल एनर्जी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे पदार्थ वहीं से निकले।
सर्व योनिषु कौन्तेय। अब ये योनि कौन थी? योनिय की योनि थी। इसने योनियों को पैदा किया। महद योनि ने योनियों को पैदा किया। कौन सी योनि? देवता की योनि, मनुष्य की योनि, वृक्ष की योनि, पशु की योनि, पक्षी की योनि। कहां से निकली? उस महद ब्रह्म योनि से निकली। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति सा। इन योनियों में तरह तरह की मूर्तियां निकली। मनुष्य की मूर्ति निकली, देवता की मूर्ति निकली, पशु की मूर्ति निकली, वृक्ष की निकली, पक्षी की निकली, पशु की निकली। ता अहम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। महद योनि अहम पिता बीज प्रदा, मैंने उसमें बीज डाला। और उससे ये मूर्तियां निकल गई। तो योनियों की योन और बीजों का बीज 10वें चैप्टर में आ चुका है विभूतियों में। अर्जुन से कहा मैं सारी योनियों की योनि हूं और सारा बीजों का बीज मैं ही हूं। वहां मोटे तौर पर आया, यहां पूरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं भगवान कि होता कैसे है, ये कैसे संभव है। अब ये पैदा क्या करते हैं? वहां तो क्षेत्र से पैदावार निकली, किसान ने फल काटा, अपना फसल काटी अपनी। इस बीज और योनि से निकला क्या? सनातन धर्म के 2 लेवल हैं। एक लेवल है जब कणाद मुनि वगैरह थे, जिन्होंने पदार्थ को कहा कि अणु से बने हैं, एटम से बने हैं, कण से कणार्थ, मालिक्यूल, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर उनको भी छोटे छोटे कणों में बताया ये है। लेकिन बाद के ऋषि मुनि व्यास, गौतम, इन्होंने कहा नहीं, फिर तो उसका एक एंड आ जाएगा ना। पदार्थ में ही टिके रहोगे तो पदार्थ से पदार्थ, पदार्थ से पदार्थ, पदार्थ का कभी अंत होगा ही नहीं। इन्होंने दूसरी फिलॉसफी लाई, क्या? जो एंडलेस है, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, बंद नहीं है, उसका नाम है गुण। गुण, सत्व, रज और तम। तो ये पैदावार क्या हुई? 3 बच्चे पैदा हुए, सत्व, रज और तम, और विलक्षण बच्चे पैदा हुए, एक दूसरे को काटने मारने वाले। अपोजिट धर्म वाले, एक दूसरे का विनाश करने वाले। तम सत्व का विनाश कर देता है, सत्व तम का विनाश कर देता है। एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान है, डायमेट्रिकली अपोजिट। और इन दोनों को समन्वय करने के लिए बीच में रज बना दिया। तीन बच्चे पैदा हुए इस सृष्टि को चलाने के लिए, सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तमा इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से संभव हुए, महतत्व से निकले। जैसे कहा कि सारे पदार्थ निकले, पदार्थ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, काला, पीला, मोटा, ताजा। अब इनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे सत्व, रज, तम के? ये तो सूक्ष्म है,
तो ये गुण उसी प्रकृति से निकले, गुण प्रकृति संभवा तन निबंधी देहम देहिनम। देह को देही और देह का संबंध इन्हीं से है। आत्मा को प्रकृति में फंसाने वाले हैं ये गुण, माने गुण कहते हैं इसको। गुण शब्द है रस्सी, रस्सी से चीजों को बांधा जाता है। तो ये सत रम तम ये 3 रस्सियां हैं, ये आत्मा को बांधेंगी। लेकिन प्रश्न यह है, आत्मा तो निर्विकार है, कैसे बांध सकते हैं आप? वो तो किसी अवयव की बनी नहीं है, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तब ये कहना कि ये रस्सियां बांध रही हैं, ये कहां तक सच है? कैसे बांध सकती हैं? वो तो कुछ है ही नहीं, किसी तत्व की नहीं बनी है, तो बांधेंगी कैसे? तो असल में बांधती नहीं है, बांधते हुए से आभास होता है। बंधती नहीं है, बंधने का आभास होता है, भाव होता है, असल में नहीं बंधती। अब तीनों कैसे कैसे बांधते हैं? तीनों को बांधने का तरीका यह है, इसको यूं समझिए, बहुत सारा ढेर है रस्सियों का, जाल बिछा हुआ है, उसमें आप बैठ गए तो क्या होगा? आप उलझ जाएंगे उसमें, चारों तरफ रस्सी रस्सी है। आप चेतन है और रस्सी जड़ है, लेकिन उलझ तो गए आप। तो उसी तरह जीवात्मा जब इस प्रकृति में बैठ जाती है, जहां पर ये सारी रस्सियां मौजूद हैं, उनका आभास करती है, इसी को बंधना कहते हैं। तीनों कैसे बांधते हैं? सत्व किससे बांधता है, रजस किससे बांधता है, तमस किससे बांधता है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम। सत्व क्या है? निर्मल है, स्वच्छ है, निर्विकार है, गंदगी नहीं है कोई, दोष नहीं है कोई, प्रकाशमय है, अनामय है, विकार रहित है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन च नगः। ये किससे बांधता है? ज्ञान और सुख से। ये क्या संबंध है सत्व का? इमेजिन करिए, जब आप ध्यान की पराकाष्ठा में होते हैं, संसार छूट जाता है, उस समय ज्ञान का प्रकाश 9 दरवाजे पर दिखाई देता है। उस प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब आप बल्ब जला देते हैं तो जो भ्रांति रहती है कि रस्सी है कि सांप, वो मिट जाता है। रोशनी नहीं है तो रस्सी सांप दिखने लगती है, रोशनी आ गई तो एकदम क्लियर रस्सी दिखाई दी। तो जब सत्व का मतलब है प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान में सब चीजें एकदम जस की तस दिखती हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है कि दिख गया सब। उसी का नाम सुख है। सत्व का मतलब ज्ञान और बांधता है सुख से। अपने अंदर ज्ञान आया, चीजों को समझ लिया, तो एक सुख की अनुभूति हुई, और चाहते हैं और चीजों को इसी तरह समझ लें। यही बंधना हुआ, चस्का लग गया। क्या? और ज्ञान प्राप्त करें और चीजों को समझें। तो सत्व किससे बांध रहा है? ज्ञान और सुख से।
क्यों? आनंद आ रहा है। सुख की अनुभूति कब होती है? जब चीज समझ में आ गई आर्किमिडीज के, तब इतनी सुख की अनुभूति हो गई कि नंगे दौड़ पड़ा। तब से निकला और नंगे दौड़ा, यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ, पा लिया पा लिया पा लिया। ऐसी सुख की अनुभूति होती है कि आदमी पागल हो जाता है, फिर उसको किसी चीज और की जरूरत नहीं महसूस होती, इतना आनंद मिलता है उसमें। ये भी बंधना है, बंध गया। तो सत्व बांधता है ज्ञान से, प्रकाश से, सुख से। रजस किससे बांधता है? रजस रागात्मक विद्धि। रजस राग से बांधता है। राग माने अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? किसी चीज की अनुभूति हुई, आपको सुख का अनुभव हुआ, अब आप चाहते हैं वो बना रहे, खत्म ना हो। इसी का नाम अटैचमेंट है, इसी का नाम ममता है। ये गायब ना हो जाए। तो रजस बांधता है राग से। रजस रागात्मक विद्धि। तृष्णा संगम समुद्भव। जब किसी चीज में अटैचमेंट हो जाती है तो कहते हैं और मिले। और मिलने का नाम तृष्णा है। इच्छा होती कि और ज्यादा मिल जाएगी। तो रजस अटैचमेंट से बात करके तृष्णा पैदा करता है, और मिले। तो और मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इसलिए रजस कर्म से बांधता है। सत्व ज्ञान से बांधा और रजस कर्म से बांधा। और कर्म करो, और पैदा करो, और धन पैदा करो, और ऐश्वर्य पैदा करो, और बल ऐश्वर्य पैदा करो। ये रजस है। तृष्णा से बांधता है, कर्म से बांधता है, अहमता और ममता से बांधता है। अहमता क्या होती है? ये घर मेरा, ये अहमता है। और ममता क्या है? अहमता और ममता में क्या फर्क है? मैं ही शरीर हूं, ये अहमता है, अहंकार। और ये शरीर मेरा है, ये ममता है। मैं शरीर हूं, ये अहंकार है, और मेरा शरीर है, ये ममता है। तो अहमता और ममता पैदा किससे होती है? रजस से। रज रूपी रस्सी ये पैदा करती है। रजस रागात्मक विद्धि। तृष्णा संगम समुद्भव। तृष्णा पैदा करती है। तन्निबंधनाति कर्म योगेन देहिनम। उस आत्मा को कर्म योग से बांधती है। ये बांधती हुई सी प्रतीत होती है, बांध तो सकती नहीं। अब तीसरी रस्सी कैसे बांधती है? वो तमस की रस्सी है। वो जस्ट सत्व की अपोजिट है, 180 डिग्री। सत्व ज्ञान और प्रकाश से बांधता है, तो ये अंधकार और अज्ञान से बांधती है। उसका जस्ट अपोजिट। ज्ञान को ढक देती है, मोह से सारी देह को बांधती है।
प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधती है। प्रमाद क्या होता है? लापरवाही, काम ना करना, सोते रहना, ये प्रमाद है। जो करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये प्रमाद है। जैसे शराबी है, अपने को ही काटता है, अपने को ही मारता है, क्योंकि अंधकार हो गया, ज्ञान खत्म हो गया। तो जो नहीं करना वो कर रहा है, जो करना वो नहीं कर रहा है। प्रमाद इसको कहते हैं। आलस्य किसको करते हैं? आज नहीं कल करेंगे, सोते रहो, देख लिया जाएगा। तो ये तमस, अंधकार, अज्ञान, प्रमाद, मोह, आलस्य से बांधता है। अब क्वेश्चन ये है, आपने देखा तीनों के धर्म अलग अलग हैं। जो धर्म सत्व का है उसी का जस्ट अपोजिट तमस का है, और ये तीनों बच्चे साथ में हैं, एक दूसरे को काट करके खत्म कर देंगे। तमस सत्व को खत्म कर देगा या सत्व तमस को खत्म कर देगा, लेकिन बीच में रजस है, ये करने नहीं देता। ये तीनों का समन्वय बैठाता है। कैसे? देखिए कैसे तीनों एक साथ रहते हैं। इन्होंने एक नियम बना लिया है। क्या नियम बना लिया? एक समय एक ही आदमी लीडर होगा, बाकी 2 फॉलोअर होंगे। जब सत्व की प्रधानता होती तो सत्व लीडर होगा और रजस तमस उसके पीछे चलेंगे, वो जो कहेगा वही करेंगे। और जब रजस की प्रधानता होगी, वो लीडर होगा, तो सत्व और तम उसके पीछे चलेंगे, उसके सर्वेंट बन जाएंगे। और जब तम की प्रधानता होगी तो सत्व और रज उसके पीछे चलेंगे। तो रजस तमस को दबा के सत्व बढ़ता है, सत्व और तमस को बढ़ा के रजस बढ़ता है, सत्व और रजस को बढ़ा के तमस बढ़ता है। ये इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। एक समय एक प्रधान रहता है, दूसरे 2 उसके सर्वेंट रहते हैं। तो हर समय एक प्रधान रहेगा और 2 उसके फॉलोअर रहेंगे। तो जिस समय सत्व प्रधान रहेगा तो किस चीज का संजन करेगा? ज्ञान और सुख का। रजस प्रधान रहेगा तो कर्म का संजन करेगा, प्रवृत्ति। तमस तो प्रमाद आलस्य का संजन करेगा, अज्ञान का संजन करेगा। तो जिस समय सत्व की प्रधानता होती है और हमने शरीर छोड़ दिया, उस समय हम कहां जाएंगे? उच्च लोक में जाएंगे, जहां सत्व की प्रधानता है, देवलोक। सत्व के एट्रीब्यूट्स क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जैसे देवता गंध से ही पेट भर लेते हैं, स्वाद से ही पेट भर जाता है उनका, स्थूल तत्व की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब सत्व प्रधान होता है तो हम देवलोक में जाते हैं, रजस प्रधान होता है तो हम कहां जाते हैं? इस मृत्युलोक में रहते हैं। और तमस तो हम नीचे जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो जब सत्व बढ़ा रहता है और शरीर का त्याग हो गया, ऊंचे लोकों में चले गए, वहां उस धागे को पकड़ के फिर साधना हमारी जुट गई, आगे चढ़ जाएंगे। रजस प्रधान रहा और शरीर छूटी, इस मनुष्य योनि में आए, जहां पर सत्व भी है, रज भी है, तम भी है हमारे अंदर,
तो हमें अधिकार दिया गया है कि तुम अपने को उत्थान कर सकते हो कर्म योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इन तीनों की प्रधानता के समय जो शरीर छूटता है, 3 दिशाओं में जाता है। तब अब आपके समझ में आ गया कि ये रस्सियां कैसे बांधी और इनका फल क्या हुआ, ये कहां ले जाती हैं। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण इस समय लीडर है, सत्व की लीडरशिप है या रजस की लीडरशिप है या तमस की लीडरशिप है, ये कैसे पता चलेगा। इसका भी संकेत बता दिया। क्या बताया? जब 9 दरवाजे पर प्रकाश की वृद्धि हो, ज्ञान ही ज्ञान हो, तब समझो सत्व की वृद्धि हुई। जैसे एक साइंटिस्ट, एक आविष्कारक अपने 24 तत्वों को कंट्रोल करके एक बिंदु पर चेतना को एकत्रित करके आगे बढ़ता है, ज्ञान की अनुभूति करता है, तब समझो सत्व का प्रकाश का उदय हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है। तभी तो उसको नई नई चीजें दिखती हैं, नया आविष्कार करता है, नया अनुसंधान करता है, उस प्रकाश के अंदर देखता है, नई नई विद्याओं का आविष्कार करता है। यही हमारे ऋषियों मुनियों ने किया। वहां तक अभी साइंस पहुंच नहीं पाई है जहां तक वो चले गए थे। जो सत्व में आविष्कार होता है, अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, खोज होती है, उस समय मनुष्य जो है जिस चीज में डूबा हुआ है उसको न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, न रहने की सुध है। सोचो आर्किमिडीज को, सब सुध भूल गया और टब का पानी छलका तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकला और दौड़ा नंगे। तो सोचो सत्व की प्रवृत्ति अगर बड़ी है तो प्रकाशमय है, ज्ञानमय है। और कैसे जाने कि रजस बढ़ा हुआ है? रजस के गुण क्या है? तृष्णा, अटैचमेंट, राग, भोग, संग्रह। जब और प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो, और धन उपार्जन करो, और स्टैंडर्ड बढ़ाओ, समझो रजस बढ़ा हुआ है। क्यों? कर्म कराएगा उसके लिए। तृष्णा, जो चीज है उसको बढ़ाना। एक चीज प्राप्त हुई, उसका आनंद लिया, अब कहते हैं और मिले, उसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा की वृद्धि करता है ये। जब तृष्णा की वृद्धि हो, भोग की वृद्धि हो, संग्रह करने की वृद्धि हो, तब समझो रजस बढ़ा हुआ है। और जब आलस्य, प्रमाद, भय, कुछ न करने की इच्छा, उल्टा पुल्टा करने की इच्छा, तब समझो तमस बढ़ा हुआ है। ये भी बता दिया अर्जुन को कि तुम पहचानोगे कैसे, सिम्टम कैसे हैं कि कौन सा लीडर है इस समय, सत्व लीडर है कि रजस लीडर है कि तमस लीडर है।
इस सिम्टम के द्वारा अर्जुन तुम ये जान जाओगे कि इस समय लीडरशिप किसकी चल रही है। अब कहते हैं इनके फल क्या होते हैं। सत्व का फल होता है पुण्य और तमस का फल होता है पाप। हमेशा तमस क्या करता है, जो नहीं करना वो करता है, जो करना वो नहीं करता है। इसलिए अपना भी हानि करता है और संसार की भी हानि करता है, ब्रह्मांड की भी हानि करता है। सत्व क्या करता है, सबका भला करता है, क्योंकि उसको साफ दिखाई देता है क्या सही है क्या गलत है। अब भगवान ने कहा कि ज्ञान क्या है अर्जुन, क्योंकि 13वें चैप्टर से चला ज्ञान यज्ञ। उन्होंने क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, अब 3 गुणों की व्याख्या की, और ये 3 गुण बांटते कैसे हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान वो नहीं है जो 13 चैप्टर में कहा गया, अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांति अर्जुन। उस ज्ञान का ज्ञान है ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान है ज्ञान। वो क्या ज्ञान है, जब ये दिखने लगे कि ये 3 रस्सियां ही हैं और कुछ नहीं है संसार में, प्रकृति में। प्रकृति जो है सत्व रज तम के अलावा कुछ नहीं है, इन्हीं का व्यापार है। कर्म यही करते हैं और कोई कर्म नहीं करता। जब देखने लगता है कि कर्म तो है, हम आत्मा हैं, हम कर्म नहीं करते, कर्म ये गुण करते हैं, प्रकृति करती है, ये समझ लेना ही ज्ञान है। तब क्या करेंगे कि अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे प्रकृति से, कि भाई तुम लोगों को जो करना है करते रहो, हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। यही ज्ञान है, असली ज्ञान यही है, नाता तोड़ लेना। तो ज्ञानी कौन है, जो प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया, वो ज्ञानी है। प्रकृति के कर्मों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो ज्ञानी है। तब झट से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि आपने बड़ी अच्छी व्याख्या समझाई, सब चीज समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन अब एक चीज और बता दीजिए। भगवान ने कहा क्या जानना चाहते हो, ज्ञानी के सिम्टम क्या है, हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। क्योंकि क्रिया तो ज्ञानी भी करता हो रही है और क्रिया जो है अज्ञानी में भी हो रही है। जैसे पिछले लेक्चर में संदर्भ आया था कि अर्जुन ने क्रोध किया, कृष्ण ने क्रोध किया, ये नासमझी है, ये अज्ञानता है। क्यों, क्रिया अर्जुन में थी, कृष्ण में भी थी, और 11 करोड़ सेना में भी थी। फर्क क्या था कि अर्जुन और कृष्ण उस क्रिया से संबंध नहीं रखते थे, संबंध विच्छेद हो गया था। क्रिया हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन दूसरों का क्रिया में संबंध है, नाता है उनका उस क्रिया से। तो भगवान ने यही समझाया अर्जुन को कि तुम जानना चाहते हो कि सिम्टम क्या है, मोटा मोटी यही है सिम्टम। क्या कि ज्ञानी का इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं, और अज्ञानी उस क्रिया में है, उसी से जुड़ा हुआ है। मैं क्रोध कर रहा हूं, ये मैं अज्ञान है,
क्रोध हो गया ये ज्ञान है, उसमें मैं नहीं है। क्रोध हो गया एक प्रकृति है, एक इवेंट है, वो इवेंट हो गई, उसको देख लिया, ये ज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी क्या किया, क्रोध से अपने को अटैच कर लिया, हमारे में क्रोध हुआ, हमने क्रोध किया, ये अज्ञानी है। भगवान ने इसको बड़ी अच्छी तरह समझाया कि कैसे समझोगे, क्या सिम्टम होंगे, हाँ, कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। इसका विवेचन 12 चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है। 26 गुणों का वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी मया हर्मित मनोर बुद्धि ये भक्त समय प्रिय यस्मानो दुष्टे लोको लोकानो दुष्टे च हर्षामर्ष भयोद्योगे ये भक्त समय प्रिय अनपेक्ष शुचि दक्षो उदासीनो गतव्यता सर्वारम परित्यागी ये भक्त समय प्रिय न हेष्टि न द्वेष्टि न सोचती न कांति शुभाशुभ परित्यागी ये भक्त समय समस्त शत्रुत मिच्योत सम आम शीतुष्ण दुखे तु सम संग विवर्तित तुल निंदा स्त्री मनम शत्रुत मेन अनिकेत स्थिर मन। ये 26 गुण बताए ज्ञानी के। क्या? द्वेष नहीं है, राग नहीं है, अद्वेषता है, किसी चीज में द्वेष नहीं है और किसी चीज में राग भी नहीं है। राग का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, कि ये घर मेरा है, ये शरीर मेरी है। राग 2 तरह से होता है, एक मैं से और एक मेरा से, और इसी को माया कहा। लक्ष्मण को राम ने समझाया अरण्य कांड में, मैं और मोर तोड़ता है माया। माया क्या है? मैं मेरा तू तेरा, मैं ही माया है। मैं मिटा तो तू भी मिट गया, मेरा भी मिट गया और तेरा भी मिट गया। यही अविद्या है, ये आई। तो ज्ञानी का क्या होता है? परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो न्यूट्रल हो, उस परिस्थिति से न द्वेष करता है न राग करता है, तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है। 3 तरह के लोग होते हैं। 2 लोगों में झगड़ा हुआ, दोनों को बैठाया समझाया, इसको कहते हैं मध्यस्थता। मध्यस्थता की, गिव एंड टेक कराया, समझौता कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा है हमें कुछ नहीं करना है, मध्यस्थता। तुम जो कर रहे हो करते रहो, हम जो कर रहे हैं करते रहे। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। हजारों हैपनिंग हो रही है संसार में, हम न्यूट्रल की तरह, उसको दृष्टा की तरह देखते हैं। लेकिन जब एक हैपनिंग हमें अफेक्ट करती है तो हम दृष्टा नहीं रहते हैं, हम पार्टनर बन जाते हैं कि ये दुख मुझे ना हो। हजारों लोगों को दुख हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब दुख मुझे हुआ तो हम कहते हैं नहीं, मेरे को नहीं होना चाहिए। यही माया है। तो भगवान में 4 श्लोकों में एक ज्ञानी के सिम्टम बताए कि कैसे ज्ञानी को तुम पहचानोगे। अर्जुन क्या कहा देखिए, इन तीनों गुणों को लांघने वाले का सिम्टम क्या होगा? अर्जुन कहता है कैनिंग त्रीन गुणा तेनिन भवति भवो किम आचारम कथम चेना त्रीन गुणम अतिरिक्तो। कैसे बर्ताव करता है? भगवान करते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि। न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति है न अज्ञान को हटाने की प्रवृत्ति है। तटस्थ है, न्यूट्रल है, मतलब प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है, कोई लेना देना नहीं है, न राग है न द्वेष है, उदासीन है, न्यूट्रल है।
गुण उसको विचलित नहीं कर रहे। हमको गुण विचलित कैसे करते हैं? या तो हम सत्व के साथ होते हैं, ज्ञान और आनंद लेना चाहते हैं, सुख की अनुभूति होती है, उससे बच जाते हैं, या कर्म करके अपनी तृष्णा की पूर्ति करते हैं, इच्छा की पूर्ति करते हैं, तब बच जाते हैं, या अज्ञान से ढके रहते हैं, अपना कर्तव्य ही छोड़ देते हैं, अपना धर्म ही छोड़ देते हैं। इन तीनों से बचते हैं। कहता है ये उदासीन है, इन तीनों से इसका कोई लेना देना नहीं है अर्जुन, न सत्व से, न रज से, न तम से। ये गुणों में बैठा तो है, लेकिन गुणों का आभास नहीं कर रहा है। प्रकृति में बैठा तो है, लेकिन प्रकृति का आभास नहीं कर रहा है। प्रकृति क्या है? ये तीन गुण ही प्रकृति है, और कोई प्रकृति नहीं है। सुख दुख किसमें है? प्रकृति में है। लाभ हानि किसमें है? प्रकृति में है। जश अपयश किसमें है? प्रकृति में है। क्यों? आत्मा तो निर्विकार है, उसमें तो गुण दोष हो ही नहीं सकते, वो तो किसी चीज की नहीं बनी है, तो उसमें तो विकार हो ही नहीं सकते, उसको तो कोई छू नहीं सकता। तो ये आत्मज्ञानी आत्म तत्व में स्थित है। आत्म तत्व में जब स्थित हो गया तो प्रकृति छूट गई, प्रकृति दूर हो गई। प्रकृति में सारे हलचल हो रहे हैं, लेकिन साधारण मनुष्य हम और आप की तरह ये सोच देखकर पहचान नहीं पाएंगे इस ज्ञानी को। जैसे राजा जनक विलाप कर रहे हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, इतने बड़े ज्ञानी। लोग क्या सोच रहे हैं? अज्ञानी है ये, रो रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो प्रकृति कर रही है, जनक नहीं कर रहे हैं। जनक का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ हो रहा है प्रकृति कर रही है, क्योंकि वो आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में लीन है। सुख दुख से मतलब नहीं, मिट्टी हो, सोना हो, हीरा हो, उसे कोई मतलब नहीं। ये प्रकृति के धर्म है। निंदा और स्तुति से मतलब नहीं। कोई हमारी बड़ाई कर रहा है कि हमें गाली दे रहा है, प्रकृति के धर्म है, हमारे धर्म नहीं है, वो प्रकृति में है ही नहीं। तो इसलिए निंदा और स्तुति का उस पर असर ही नहीं। मान अपमान का कोई असर नहीं, क्योंकि मान अपमान प्रकृति में होता है, आत्म तत्व का कोई मान अपमान नहीं है। शत्रु और मित्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का धर्म है, आत्म तत्व का धर्म नहीं है। किसी चीज की कल्पना नहीं करता है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्याग कर दिया। आरंभ का मतलब रजस, कर्म प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा को पूरी करने की इच्छा। अब भगवान ने उसको सूत्र भी बता दिया। अर्जुन ने तो केवल इतना पूछा कि उसके आचार कैसे होंगे, व्यवहार कैसे होंगे, सिम्टम क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे ज्ञानी को। तो बता दिया कि न्यूट्रल रहे, एकदम ठूंठ की तरह, लकड़ी के फट्टे की तरह, उस पर कोई असर ना हो तो समझ जाना ज्ञानी है। लेकिन फिर यह भी तो बताना जरूरी है कि वो ज्ञानी बनेगा कैसे। मूल प्रश्न तो ये है। ये गुणातीत कैसे हो जाएगा, द्वंद्वातीत कैसे हो जाएगा, द्वंद्वों के पार और गुणों के पार कैसे चला जाएगा, प्रकृति तत्व से निकल करके आत्म तत्व में कैसे चला जाएगा। प्रोसेस तो बताओ, प्रोसीजर तो बताओ, विधि तो बताओ। तो भगवान ने ये भी बता दिया एंड में आकर के अर्जुन को कि अर्जुन एक ही सहारा है,
पहले तो बताए थे 13वें चैप्टर में क्या, कि 4 तरीके हैं। कौन से 4 तरीके? अज्ञानी है तो गुरु के पास चल जाओ, तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः ज्ञान इंद्रियम। उस प्रोसेस में श्रद्धा जरूरी है, विश्वास। गुरु जो कह दे उसको क्वेश्चन नहीं करना है। कह दे कूद जाओ पानी में, कूद गया, कूद जाओ आग में, कूद गया। ये अटूट श्रद्धा और विश्वास होती नहीं है मनुष्य में, क्योंकि मैं आ जाता है कि मैं जल जाऊंगा। इसलिए जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तो शिष्यत्व खत्म हो गया। शिष्य के क्वालिटी है श्रद्धा और विश्वास, और गुरु की क्या क्वालिटी है? तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम। तत्व का दर्शन करा देता है। लेकिन गुरु तो ऐसा है ही नहीं जिसको खुद ही तत्व नहीं मालूम, तो दर्शन कहां से कराए? इसलिए ये प्रोसेस 1 in ट्रिलियन होता है। तो दूसरा प्रोसेस बता दिया, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु वित्ता नाते कर्म अकर्मणि। निष्काम कर्म करो, जिस चीज के लिए भेजे गए हो वही करो। सूर्य रोशनी दे रहा है, अग्नि तपा रही है, आम का पेड़ आम दे रहा है, तुम भी किसी चीज के लिए भेजे गए हो। क्या है? तुम्हारे संस्कार। उन संस्कारों को होने दो। वो संस्कार क्या है? प्रकृति, सत्व रज तम, ये निकलेंगे, इनको निकलने दो, उनसे नाता तोड़ दो, निष्काम कर्म करते रहो, सब निकल जाएंगे, शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, साफ दिखाई देगा कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है। प्रकृति में चले जाओ निष्काम कर्म के द्वारा। और इससे भी उच्च कोटि की सीढ़ी बताया, क्या? ध्यान, समाधि। गौतम बुद्ध धारणा करो, एक एरिया में सारे कॉन्शियसनेस को केंद्रित करो, उस एरिया को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक बिंदु पर आ जाओ, और बिंदु भी गायब हो जाए, इसका मतलब तुम ही गायब हो गए। तुम ब्रह्मांड के पार्ट बन गए, जैसे हवा है, सब जगह है, तुम भी हो गए हवा। तब ज्ञान की प्राप्ति हो, प्रकृति छूट जाएगी, कोई बांध नहीं पाएगा। कहीं खूंटा नहीं है हवा को बांधने वाला, कहीं खूंटा नहीं है सूरज की रोशनी को बांधने वाला, सब जगह है। तो भगवान ने कहा इससे भी उत्तम चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम करके इनको पाओगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे सरल तरीका बताया, क्या क्या तरीका बताया? हर जगह वही बताते आ रहे हैं, हर अध्याय के एंड में वही बताते हैं। क्या कहते हैं? माम च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते। मुझे जो अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवन करता है। अव्यभिचारिणी क्या है और व्यभिचारिणी क्या है? व्यभिचारिणी माने विकार। विकार माने कभी हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, फल नहीं मिला तो हनुमान जी के पास चले गए, नहीं मिला तो संतोषी माँ के चले गए, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? एक पार ब्रह्म परमेश्वर में एक झरने की तरह अपने ध्यान को सटा देना, जो एक क्षण भी उससे विचलित ना हो, अलग ना हो, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। जब गीता खत्म हुई 18 चैप्टर का 66 श्लोक में भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, बालक बन जाओ 8 महीने का, मैं माँ बन जाऊंगा, तुम्हारी सारी क्रिया मैं करूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लंगोटी भी मैं साफ करूंगा, दूध भी मैं पिलाऊंगा, सब कुछ मैं, एक जगह से दूसरी जगह मैं ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम बस बालक बन जाओ और मैं माँ बन जाऊंगा। तो ये सबसे सरल उपाय है। अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवान की आराधना 24 घंटे करना, जैसे वो झरना गिरता है, 1 सेकंड भी ब्रेक नहीं होता। इस अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा तुम तीनों गुणों को लांग जाओगे, द्वंद्वों को लांग जाओगे, द्वंद्वातीत हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे। यही उपाय है, यही ज्ञान की चरम सीमा है। तो ये कहने के बाद भगवान ने अध्याय का अंत कर दिया। गुणत्रय विभाग योगो नाम, ओम सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम। उपनिषदों का सार, उपनिषदों को निचोड़ा, उसका रस लिया और भर दिया। क्या? गुणत्रय विभाग, 3 ही गुण है, इन 3 रस्सियों से पार पा जाओ। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। ये सरल उपाय है, पा सकते हो। क्यों? भक्ति में न नियम है, न कानून है, न धर्म, कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। क्यों? तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है। तुम तो 6 महीने के बालक हो, तो तुम करोगे क्या? क्या क्या करोगे? करेगी तो माँ ना। तो भगवान कहते हैं तुम बालक बन जाओ, हम माँ बन जाए। यही क्राइस्ट ने अपने भक्तों को बताया कि अगर तुम आना चाहते हो तो बिकम ए चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड ऑफ 8 months, देन यू विल कम टू मी। वही चीज है। तो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई। यही तो भक्ति है। क्या भक्ति है? इस चौपाई को ध्यान से सुनिए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं लंका में, भगवान को हृदय में रखे हुए हैं। गरल सुधा विष अमृत बन जाएगा, रिपु करे मिताई, दुश्मन जो है मित्र बन जाएगा, मित्रता करने लगा। गरल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंधु, अपार समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाएगा। अनल शीतलाई, अग्नि जो है शीतलता की वर्षा करने लगेगी। गरुण सुमेर रेन समताई, सुमेर पर्वत राई के बराबर हो जाएगा। राम कृपा कर चितवा जाई, राम की दृष्टि जब चली गई तो ये आश्चर्य होते हैं। इसी का नाम भक्ति है। जब भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति होती है और उनकी नजर पड़ जाती है तो उल्टा पुल्टा होने लगते हैं। साइंस के सब धर्म खत्म हो जाते हैं। समथिंग आउट ऑफ नथिंग, नथिंग आउट ऑफ समथिंग होने लगता है। आग शीतल हो जाती है, पर्वत राई हो जाता है, विष अमृत हो जाती है। यही एकमात्र सूत्र है। जय श्री राम। अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, हमारी तरफ से खत्म हो गया। बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद आया। बहुत।
Any questions? क्या हुआ, क्वेश्चन वाले कहाँ गए? मिसेस ग्रोवर की आवाज तो सुनाई थी। हैं तो प्रेजेंट है। नहीं, वो मौका दे रही है ना जी, बाकी भी तो क्वेश्चन पूछे। सर लग नहीं रहा आज कोई क्वेश्चन पूछेगा। सारे भक्ति में इतने सारा बोर हो गए हैं, सब लोग भक्ति में इतना सारा बोर हो गए हैं कि भूल गए कि यह प्रश्न कोई पूछना है। नहीं नहीं, मिसेस ग्रोवर अभी पूछेंगी, सोच रही होंगी। मिसेस ग्रोवर आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ये अभी सोच रही हूँ कि ये सब कैसे होगा, क्या बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इस में मेरा माइंड चल रहा है। देखिए, मुश्किल भी है और आसान भी है, दोनों है। मुश्किल इसलिए है कि संसार छोड़ता नहीं है, आसान इसलिए है कि एक बार हमने तय कर लिया कि केवल भगवान की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आसान हो गया। नहीं हो पा रहा, वही हाँ, नहीं हो पा रहा। तो वो दृढ़ निश्चय की बात है। एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि 24 घंटे भगवान की भक्ति में ही रहेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। बार बार संसार खींचेगा, बार बार अपने को वहां से हटाएंगे, बार बार खींचेगा, बार बार हटाएंगे, बार बार संसार लाएगा खींच के, देखेगा देखो ये है कितनी अच्छी चीज है, हम कहेंगे नहीं नहीं चाहिए हमको, फिर हम अपने को हटाएंगे। अच्छा ये खा लो, नहीं खाएंगे, ये पी लो, नहीं पिएंगे, ये कर लो, नहीं करेंगे। तो ये जो अभ्यास है ना, बार बार अभ्यास छोड़ने का, ये प्रैक्टिस करना है। संसार नहीं खींच रहा, मैं नहीं छोड़ रही। हाँ, संसार नहीं खींच रहा मुझे, मैं नहीं छोड़ना तो मैं ही तो कर रहा हूं, मैं को छोड़ो ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ रही, मीन्स मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा। हाँ, तो इसी को तो प्रैक्टिस करो, इसी को तो प्रैक्टिस करो छोड़ने की। रोज रोज एक एक चीज छोड़ो। देखियो क्या क्या छोड़ना है। अब हम लोग जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, 70 के ऊपर वाले, कहाँ कहाँ है हमारी चेतना? हमारे बच्चों में है, पोती पोतियों में है, हमारे धन में है, हमारी समृद्धि में है, हमारे घर में है, हमारे वैभव में है, हमारे ऐश्वर्य में है। तो क्या छोड़ना है? एक एक कर से संबंध विच्छेद करते जाना है कि नहीं है तो ये लोग, लेकिन मैं इनमें लिपटूंगा नहीं। पर अपने शरीर में तो बंधा रहता है ना, शरीर को नहीं देख सकता दुखी, शरीर से बंधा रहता है, वो बड़ी मुश्किल है। देखिए, शरीर से आप कुछ करें या ना करें, आपको प्यास लगेगी तो पानी पिला देगा शरीर, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी पानी पिलाएगा। आप चाहें तो धड़कन को रोक नहीं सकते, धड़कन चल रही है, वो अपना धर्म निभा रही है। शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, सांस चल रही है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो, और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका वो धर्म है, वो अपना धर्म निभा रही है। हमारा धर्म क्या है? उसको होने देना, हम बीच में उसमें इंटरफियर ना करना। हम कहते हम कैसे इंटरफियर करते हैं? खराब खाना खा करके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, खराब विचार से मन को खराब करते हैं, खराब कर्म से शरीर को खराब करते हैं। ये तो हम ही करते हैं ना। ये तो हमारे बस में है। तो जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं ना। अपने शरीर से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई पेड़ नहीं काटेंगे, कोई चिड़िया को नहीं मारेंगे, कोई फूल को नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें शरीर प्रकृति जो है उसको एज इट इज रहने देंगे, अपने शरीर के द्वारा उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये शरीर का धर्म हो गया, राइट। वाणी के द्वारा किसी को उद्विग्नता नहीं, दुख नहीं पहुंचाएंगे, ये वाणी का धर्म हो गया। मन के चिंतन से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे,
ये ठीक है आपकी बात, मैं कह रही हूँ हमें शरीर से प्यार हुआ है, ये मुश्किल है। उसी प्यार से तो निकलना है, वो प्यार नहीं, वो राग वो है, निकला जाता, वो राग है, अटैचमेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा, उस राग से ही तो निकालने की विधि भगवान बता रहे हैं कि भाई 24 घंटे मेरे को जपोगे तो जो उधर ध्यान था वो इधर आ गया ना। ध्यान तो एक ही जगह रहेगा, या तो लड्डू में रहेगा या भगवान में रहेगा। तो जब हम भगवान में ध्यान लगाए तो लड्डू गायब हो गया, और अगर लड्डू में ध्यान गया तो भगवान गायब हो गया। तो जब प्रकृति में हम हैं तो भगवान गायब है, और भगवान में हम हैं तो प्रकृति गायब है। अब चॉइस हमारी है, हम इधर जाएं कि उधर जाएं। तो अब ये जो वानप्रस्थ का आश्रम है ये कहता है छोड़ो, प्रकृति को छोड़ना सीखो। तुम्हारा जो धर्मता हो गया, ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्त किया, गृहस्थ में हाँ फैमिली बसाया, और सृष्टि के चलाने में योगदान दिया, अब छोड़ो, वानप्रस्थ में छोड़ो, ताकि जाते समय कोई लिपट न जाए तुम्हारे साथ। क्योंकि लिपटोगे तो सत्व से लिपटोगे ऊपर जाओगे, रस से लिपटोगे मध्य में, तम से लिपटोगे जघन्य में, तीनों ही तुम्हें उड़ेलेंगे। और तीनों को छोड़ दोगे तो आत्म तत्व में चले जाओगे, जन्म मरण से मुक्ति हो गई, कहीं जाना नहीं है। यही तो भगवान ने समझाया है। तो कहा था ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान अर्जुन मैं दे रहा हूं तुमको। प्रकृति से संबंध तीनों गुणों से गुणातीत हो जाओ। क्लियर तो आज बहुत ही अच्छी तो तरह प्रैक्टिस करना है और अपने को बार बार अभ्यास करना है, प्रकृति से निकाल करके ब्रह्म में आना बार बार। और 24 घंटे देखना है कि हम हैं कहाँ, हम प्रकृति में हैं कि ब्रह्म में हैं। और जैसे ही पता चले कि प्रकृति में है, कहो नहीं ये तो ठीक बात नहीं है, चलो ब्रह्म में ध्यान लगाओ। तो उतने वक्त तक, जितनी देर तक आपने ध्यान लगाया, प्रकृति से संबंध विच्छेद जब हुआ तो आपके संस्कार निकले उस पीरियड में, क्योंकि आपने इंटरफियर नहीं किया संस्कारों से। प्रकृति अपना कर्म कर रही है, लेकिन आप उसको करने दे रहे हैं क्योंकि आप ध्यान में हैं, आप प्रकृति में नहीं है। राय साहब, मेरा एक विचार है, मेरा विचार ये भी है कि 24 घंटे ध्यान लगाना शायद इतना पॉसिबल नहीं हो, और यह है कि हर जगह भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हर चीज में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो अगर हम जन कल्याण की भावना से चलें और ऐसी कोशिश करें कि हम पुण्य करें, दान पुण्य करें, साथ में जन कल्याण कुछ करें, तो और जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान के दर्शन करें। और ये स्थिति है कि हम कुछ अपने काम से कुछ विश्व को दे के जाएं, कुछ अच्छे काम करके जाएं। जो भी है हम अपना, हमारा जो शेष जीवन है वो हम पूरा अर्पण करें जन कल्याण में। तो क्या उस भावना से अगर हम चलें, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक करी है उषा जी कि इतना बड़ा मुश्किल काम है कि 24 घंटे भगवान के ध्यान करते रहें, तो उसकी जगह पे भगवान के हर जगह दर्शन करें और इस तरह के जन कल्याण के काम करें। अपना ठीक है, अपना जीवन है, हमने अपने बच्चों को सेट कर दिया, अपनी लाइफ सेट कर दी, सब कुछ सही कर दिया, और अब समय आ गया है कुछ हम दें, देश को दें, प्रकृति को दें, पूरे विश्व को दें, कुछ इस तरह से काम करें जिससे कि हम जन कल्याण कर सकें। तो शायद, और जो भी जन कल्याण कर रहे हैं वो इस भावना से कर रहे हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान प्रकृति को दे रहे हैं, भगवान की हर जगह दर्शन कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे अपने आप क्या आप अपने आप भगवान की तरफ मुड़ते जाओगे। करेक्ट, ये अपने बिल्कुल आप सही। अब आपने पकड़ा है। देखिए ये जो इन्होंने अभी व्याख्यान दिया, ये सत्व गुण की व्याख्यान दी। कि हम जो हैं कोई गलत काम ना करें, सृष्टि के चलाने में योगदान दें, दान दें, यज्ञ करें, अपना धर्म करें। ये सत्व प्रवृत्ति है, सात्विक प्रवृत्ति है। सात्विक प्रवृत्ति का मतलब विकार निकल गए। संस्कार जो विकार थे 3 तरह के थे, तामसिक, राजसिक, सात्विक। हम 2 को लांग गए, तामसिक और राजसिक को लांग करके तीसरे स्टेज में चले गए, सात्विक स्टेज में। तो जब सात्विक स्टेज में बहुत देर तक बने रहेंगे तो क्या होगा उसका फल?
हमें अपने आप, जो भगवान ने अभी 4 श्लोक में वर्णन किया कि हमारा कोई शत्रु नहीं दिखेगा, हमें कोई पराया नहीं दिखेगा, हमें सब अपने दिखेंगे, हमें सबका भला दिखेगा, ये सात्विक गुण आएंगे। और करते करते जब एक सीढ़ी आएगी कि ये भी छूट जाएंगी, ये सत्य की जो रस्सी है ये भी छूट जाएगी और तब आप मुक्त होंगे। तो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के द्वारा आप वहां पहुंच जाएंगे। एक बात मैं और कभी कभी सोचता हूँ राय साहब, इसके ऊपर आप बताइए कि देखिए कि हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि बहुत जगह से बहुत स्थिति से गुजरे हैं और बहुत हम लोगों ने मतलब अपनी एक्सपीरियंस गैदर किया है। तो क्या जरूरी है कि हम इस एक्सपीरियंस को यूज करके और आगे वाली पीढ़ियों को भी प्रकाशित करते रहे, उनको भी बताते रहे, जैसे आप हमको प्रकाशित कर रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो। हम लोग का भी फर्ज बन जाता है कि देखिए जिस तरह से अब भारतवर्ष एक पॉलिटिक्स की ही स्थिति लीजिए, हम पॉलिटिक्स से पलायन करें वो बात दूसरी है, बिल्कुल अलग होना चाहे बात दूसरी है, पलायमान स्थिति हो गई। पर पलायमान ना करके हम उसमें इन्वॉल्व होके अच्छे लोगों को हम सपोर्ट करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, तो क्या वो एक आवश्यक काम नहीं? वो भी तो सात्विक प्रवृत्ति है। जी जी। देखिए ऐसा है, प्रकृति से भाग करके उपचार नहीं है, क्योंकि भागोगे तो विकार तो साथ लेके गए हो, विकार तो मिटे नहीं, जहां भी गए हो साथ हैं। तो उद्देश्य क्या है? विकारों को जलाना। और विकार क्या है? ये 3 रस्सियां, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों को ही जलाना है। तो सबसे पहले किसको जलाना है? तामसिक को। आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, चुस्ती होनी चाहिए, टाइम से काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, वही हमारा धर्म है। तो इससे हमारा तमस पार हो गया। फिर उसके बाद हम रजस में आ गए। रजस क्या कहता है? अपने लिए काम करना, राइट? तो अपने लिए लोभ है, अपने लिए तृष्णा है, वो करते करते फिर हम क्या करें? उससे हम ऊपर जाने की कोशिश करें कि भाई हो गया, अपने लिए जो करना था आप दूसरों के लिए करो। तो तीसरे स्टेज में पहुंचे जिसको कहते हैं सात्विक, जिसका फल पुण्य होता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का अनभल नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, किसी को उद्विग्न नहीं कर रहे हो, सबके लिए कुछ सब कुछ कर रहे हो, ये सात्विक हो गया। अब आखिरी श्रेणी जो है तुरिया स्टेज जिसको कहते हैं कि इसको भी पार कर जाना है, तभी मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें फंसे रहोगे तो फिर आओगे पुण्य को भोगने के लिए, फिर देवलोक में जाओगे पुण्य को भोगने के लिए। तो ये तीनों रस्सियों को पार करना है। तो इसीलिए भगवान ने तरीका क्या बताया कि भाई देखो, तुम सत्व में जाने के बाद, सात्विक प्रवृत्ति में जाने के बाद तुम उसको भी छोड़ करके मेरे में आ जाओ। क्या? कि मैं प्रकृति में जो हो रहा है उसको होने दे रहा हूं। क्या हो रहा है प्रकृति में? प्रकृति के धर्म हो रहे हैं। कौन से धर्म हो रहे हैं? हम जिस चीज के लिए बनाए गए थे वो हो रहा है। आम बनाया गया था आम देने के लिए, अमरूद बनाया गया था अमरूद देने के लिए, हम बनाए गए थे हमारे संस्कारों को मिटाने के लिए। हमारे संस्कार तब मिटेंगे जब ये संस्कार प्रकृति में कर्म करेंगे 180 डिग्री। उनको होने दो और अपने तटस्थ होकर के देखते रहो उनको। ये तुरिया स्थिति है। और इस स्थिति को बहुत देर तक मेंटेन करने के बाद ये सारे निकल जाएंगे, पूरा अंतःकरण संस्कारों से शून्य हो जाएगा। तब दिखाई देगा कि इदम सर्वम ब्रह्मम, ये सारा ब्रह्म ही है। हम जो सोच रहे थे कि ये आम है, ये अमरूद है, ये पेड़ है, ये कुछ नहीं, ये सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही दिखाई देगा, हम ब्रह्म रूप ही हो जाएंगे। इदम सर्वम ब्रह्मम, उसी का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति से एक स्टेप पहले सात्विक है, सत्य का पालन करना, यज्ञ करना, दान देना, अपना धर्म निभाना। लगता है आहूजा साहब कुछ बोलना चाहते हैं। आहूजा साहब? हाँ बोले। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम कहते हैं कि जीव छोड़ एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो उसमें एक बार आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि बीच में कितना टाइम लगता है। तो हाँ। इसमें समय का चक्कर आ गया बीच में। समय की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह की योनियां हैं। अभी बताया ना इसमें
एक देव योनि में जाते हैं ऊपर, एक मृत्युलोक में जाते हैं, और ये पेड़ पौधे कीट पतंग पशु पक्षी ये सब बनते हैं। तीन तरह के जीव हैं। अब होता क्या है कि जो ऊपर वाले जीव हैं, हाँ, उनकी योनि बहुत कम है। तो जो उस तरह के लोग हैं उनको, आपका जो प्रश्न है कि कितना टाइम लगता है, उनको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस योनि को ढूंढने में टाइम लगता है, वो है नहीं, और जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक वो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो मृत्युलोक वाले हैं, जहां 700 करोड़ आदमी हैं, इतने सारे सब दिखाई दे रहे हैं, फटाक से जन्म हो जाता है, देर नहीं लगती, यहां से निकले वहां घुस गए। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ें या आप उपनिषद पढ़ें, पिपलाद मुनि ने उपनिषद लिखा है गर्भ उपनिषद, उसमें इसका सारा विस्तार पूर्वक सूक्ष्म रूप से वर्णन है कि जिस दिन कंसेप्शन होता है और जिस दिन बालक निकलता है, इस 9 महीने में मिनट टू मिनट क्या हो रहा है, उसमें वर्णन है। आप पढ़ के तो देखिए, उसका एक सूक्ष्म रूप गरुड़ पुराण है, उसी को पढ़ के देखिए कि क्या होता है। 7वें महीने में आत्मा प्रवेश करती है, जीवात्मा। उसके पहले वो मैटर ही रहता है, पहले वो एक बिंदु रहता है, फिर वो बबूला बनता है, 2 हफ्ते तक बबल की तरह रहता है, बबल फिर मांस बन जाता है, मांस से फिर पहले हेड बनता है, हेड से फिर उंगलियां और ये सब बनती हैं, फिर दूसरे अंग बनते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा प्रवेश कर जाती है और उसके अंदर धड़कन होने लगती है, माँ का खाना खाता है, माँ का सांस लेता है, माँ का शब्द सुनता है, सब कुछ उसका संबंध उस नली से हो जाता है। जीवात्मा आ गई, अब जीवात्मा सब देख रही है। ऋषियों मुनियों ने इसको देखा ध्यान के द्वारा। पिपलाद मुनि एक्सपर्ट हैं, गर्भ उपनिषद के रचयिता है पिपलाद मुनि। उन्होंने इसका इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि मैंने इस वर्णन को पढ़ा, और हमारे साधु हैं डॉक्टर, मिलिट्री के टॉप पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और उनको सुनाया, बोले बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर आप मृत्युलोक में जा रहे हैं तो जल्दी जन्म ले लेंगे, मेरा प्रश्न जो भी देवलोक में जा रहे हैं तो टाइम लगेगा, आपको घूमते रहेंगे और उसके बाद एक देव योनि मिलेगी, तब आपका वहां पर अवतरण होगा, उसके लिए टाइम लगता है। हाँ, तो टाइम लगता है, तो टाइम फ्लो कर रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि टाइम फ्लो कर रहा है तो टाइम इल्यूजन नहीं है, इसमें टाइम इज नॉट लिमिटलेस, टाइम फ्लो कर रहा है ना। क्या अगर ये टाइम जो है, जैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना है तो कुछ टाइम लगता है या नहीं लगता है, जो भी है, तो जो टाइम ज्यादा, इसका मतलब जो टाइम इज एग्जिस्टिंग, फ्लो ऑफ टाइम, तो मतलब ये एक टाइम जो है वो कोई इल्यूजन नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि टाइम इज एन इल्यूजन, टाइम पे फीलिंग है, ये एक्चुअली नहीं है, इट इज लिमिटलेस, टाइम हैज नो ओरिजिन और एंड। तो फिर ये कैसे हुआ कि भाई एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का टाइम लगता है, यानी कि टाइम जो है ये फ्लो तो हो रहा है ना, टाइम फ्लोइंग। द कंसेप्ट ऑफ टाइम जो है, आप उसमें चले गए। हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ टाइम ये है, टाइम और स्पेस जो है वो प्रकृति में है, ब्रह्म में टाइम और स्पेस नहीं है। तो जीवात्मा जो है प्रकृति से बंध गई है, इसलिए टाइम और स्पेस से बंध गई। जब जीवात्मा का विकार खत्म हो जाता है, शुद्ध आत्मा हो जाती है, तो उसमें टाइम और स्पेस नहीं है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा से भरा हुआ है, ठसाठस। ये ब्रह्मांड इज नथिंग बट आत्मा, कोई जगह खाली नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में खाली है, खाली नहीं है, वो भरा हुआ है, सब जगह आत्मा से ठसाठस भरा हुआ है। क्योंकि आत्मा हर जगह है, और कहीं नहीं का मतलब क्या है कि हर जगह है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर जगह है।
जाना उसको है जो जहां नहीं है वहां जाएगा, जो हर जगह है वो जाएगा कहाँ? तो ब्रह्म तो हर जगह हो जाए कहाँ? आत्मा तो हर जगह हो जाए कहाँ? जाति तो जीवात्मा है जो प्रकृति से बंध गई, जो दो साइड और में जीवात्मा जब प्रकृति से बंध गई पता ही नहीं, तो प्रकृति में ही स्पेस और टाइम दोनों आते हैं। उसका कोई वो कंटिन्यूअस है। जब हम अपनी सहूलियत के लिए बिग बैंग बना देते हैं कि बिग बैंग हुआ, अब बिग बैंग हुआ उसके पहले भी तो था, टाइम था, बाद में भी टाइम है। तो अगर आप जैसे रेखा की हमारी डेफिनेशन होती है कि रेखा क्या है, रेखा हो जाए जिसकी कोई रेखा जो होती है उसकी कोई मोटाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, और लंबाई जो होती है दोनों साइड में इनफाइनाइट होती है। इसी तरह से समय जो है दोनों साइड में इनफाइनाइट है। नहीं, देखिए समय जो है वो केवल जीवात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ समय का संबंध है। क्यों 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 संबंध है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है 1000 कल्प तक, तो वो समय ही तो है। 1000 कल्प क्या है? समय है। और 1000 कल्प उनकी जो है रात्रि होती है, प्रलय होता है, समय तो है। इसका मतलब समय किसके साथ है? जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका विनाश होता है उसके लिए समय है। जो उत्पत्ति और विनाश से परे है उसके लिए समय कहाँ है? तो ब्रह्म तो इससे परे है, वहां स्पेस और टाइम का मतलब ही नहीं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा टाइम कितना लगेगा, क्योंकि आपका प्रश्न जीवात्मा से था, आत्मा से नहीं था। क्योंकि जीवात्मा तो फंसी हुई है, ये टाइम में फंस गई है, स्पेस में फंस गई है, गुणों से फंस गई है, ये रस्सियां इसको बांध ली हैं। तो अब इसको दूसरी शरीर में जाना है, क्यों? जो किया है उसको भोगने के लिए। और जिस दिन उसके अंदर कोई संस्कार नहीं रहेगा वो आत्मा हो गई, वो ब्रह्म हो गई, उसको कहीं जाना ही नहीं है। उसी का नाम मुक्ति है। बंधन क्या है? संस्कार। संस्कार क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? भाव। आप अगर क्रिया कर रहे हैं, कोई भाव नहीं है, जिसको कहते हैं उदासीन, तो आपको बांधती नहीं है। ज्ञानी की क्रिया ज्ञानी को नहीं बांधती क्योंकि वो उदासीन है। उदासीनो बदासीनो कुछ नहीं है वो, इसलिए वो बंधता नहीं है उसमें। इसी में एक प्रश्न है, वैसे तो अहुजा ने किया इसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट थोड़ा सा, उसमें ये कि जैसे कि आदमी जब प्राण छोड़ देता है और अगली योनि में जाना होता है, तो क्या कभी भटकता भी रहता है डिफरेंट योनियों में, या प्रेत आत्मा जिसको कहते हैं या दूसरी आत्मा है उस तरह की यान में रहता है? क्योंकि मैं एक वही डेथ करके किताब पढ़ रहा था जिनकी सदगुरु की, तो उसमें काफी डिटेल में डिस्कशन इस चीज के ऊपर किया हुआ है कि अगर पूरी तरह से आदमी का जो क्रियाकर्म नहीं किया जाए तो पता चला कि वो उसको सदगति नहीं प्राप्त होती, योनि दूसरी योनि में जल्दी से जाता नहीं है, और यहीं पे काफी उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू हैं। एक पहलू तो कर्मकांड से संबंधित है और दूसरा जो है जीवात्मा से संबंधित है। जहां तक जीवात्मा का सवाल है, वो तो कहते हैं 84 लाख जोनियों में घूमती है, उन्हीं में एक प्रेत जोनी भी है। उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको प्रेत जोनी में जाना पड़ रहा है, तो उसके कर्मों के अनुसार उसकी जोनी तय होती है, और उस योनि में कितने दिन रहेगी ये भी तय होता है कर्मों के अनुसार। ये नहीं कि एंडलेसली वहां रहेगी। ये तो हो गया योनि पार्ट कि जाना कहाँ उसका। जहां तक कर्मकांड का सवाल है, कर्म से कुछ, हमारे वेदांत में कर्म से कुछ मिलता नहीं है। कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। ये जितने कर्म कांड हैं ये किस लिए बने हैं हमारे सनातन धर्म में? क्या उपयोगिता है इसकी? इसकी उपयोगिता कहते हैं कि हम यहाँ रजाई दे रहे हैं तो हमारे पापा जी को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि पापा जी कहाँ हैं, उनको रजाई की जरूरत है कि नहीं, कौन जानता है किस योनि में है। हम तो ये लेके चल रहे हैं कि पापा जी दूसरे मनुष्य योनि में चले गए और कटिया चाहिए और रजाई चाहिए। हो सकता है पापा जी प्रेत योनि में है। खटिया से क्या मतलब, रजाई से क्या मतलब? तो दूसरा पहलू जो कर्म कांड वाला है, इसका मुक्ति से लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्म से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। निष्काम कर्म से हो सकती है। निष्काम कर्म से आप सत्व का जो है गुण बढ़ाते हैं अपने अंदर, और उससे संस्कार निकलते हैं। जब संस्कार निकल गए तब मुक्ति हो गई। मुक्ति का लेना देना संस्कारों से है, कर्म से नहीं है। अब निष्काम कर्म में संस्कार निकल जाते हैं, इसलिए मुक्ति मिल जाती है। निष्काम मतलब बिना कामना के, बिना इच्छा के। क्या मतलब? जो होना था वही हुआ। हमने किसी का चुराया था, हमारी चोरी हो गई, ये निष्काम कर्म है। और हमने कहा होगी यार, ये तो हमारे कर्मों का फेर है। हमने सांत्वना कर ली कि ये हमने चुराया होगा इसलिए मेरी चोरी हो गई। लेकिन हम सांत्वना नहीं करते, कहते नहीं, ढूंढना है कौन चोर है, कहां ले गया, ये बदना है, ये कर्म है, ये कर्म बांधेगा। तो ये भी जरूरी है। तो पुण्य और पाप दोनों बांधते हैं, दोनों कर्म आपको बांधते हैं। पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है। कैसे बांधता है? पुण्य सुख से बांधता है और पाप जो है अधर्म से और दुख से बांधता है, अंधकार से बांधता है। लेकिन अगर जनरल लाइफ में देखें तो ये जरूरी है कि किसने की है चोरी। अगर हम ये सोच के कि पिछले कर्म का फल था, हो गई चोरी, ऐसे थोड़ी, ऐसे लाइफ नहीं चलती, ऐसे जीवन नहीं चलता, ऐसे दुनिया नहीं चलती। इसीलिए तो दुनिया बनी है। अगर ये न रहे तो दुनिया कहाँ रहे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे कैसे हम मान लें? तो आप दुनिया पैदा कर रही हैं। यही तो दुनिया की पैदावार है कि हम कैसे मान लें। तो भगवान खुद ही क्यों नहीं खत्म कर देते इनको? जब भगवान क्यों खत्म करें? ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। भगवान ने ऑलरेडी कह दिया 13 चैप्टर में कि न मैं कुछ करता हूं, न करवाता हूं, न लिप्त होता हूं, न सटता हूं, न डरता हूं। मैं तो केवल दृष्टा हूं। हृदय में एक जीवात्मा है और एक आत्मा, परमात्मा, दोनों बैठे हैं। वो तो जीवात्मा आभास कर रही है कर्मों का, परमात्मा केवल हिसाब किताब कर रहा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं। तो इसका मतलब है वो दोनों नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, जड़ भी नहीं हूँ, चेतन भी नहीं हूँ। जड़ भी हूँ, चेतन भी हूँ। हाँ, इनकी डेफिनेशन तो आज तक पता ही नहीं किसी को, क्योंकि वेद तो केवल नेति नेति कहता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है ये नहीं बताता है। आज तक उनकी परिभाषा पता नहीं चली वेद को, वो केवल नेति नेति करता है। मतलब कुछ पता नहीं चल पाया कि ना कौन, ये कैसे शुरू हुआ और कौन भगवान है और क्यों हो रहा है। ये तो कह दिया अनादि है, ये है, इसकी शुरुआत नहीं हुई। यस, तो इसकी बिगनिंग कभी नहीं हुई, ये तो है। जिसकी बिगनिंग होगी उसका अंत भी होगा। अब नेति नेति करके तो राय साहब ने सब कुछ शांत कर दिया। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आप पिता मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में और हमको समझा रहे हैं। बहुत